Hello future chartered accountants. Today I am going to record a video on CARO 2016. Although there are many videos on YouTube regarding this, but on the students' demand I am recording today this video. So let us start with the discussion. अब अपन CARO 2016 को अपन को समझना है. सबसे पहले first of all we should understand the applicability that is given in para 1 of CARO 2016. तो para 1 क्या बोलता है? This order does not apply on. किन किन के ऊपर अप्लाई नहीं होता? This does not apply on a banking company, a insurance company, a company under section 8. तो मैंने बोला banking, insurance, section 8 company, a one person company and a small company. तो अगर मैं इन्हें बोलूँ इन 5 कंपनियों के ऊपर अप्लाई नहीं होता बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेक्शन 8, वन पर्सन एंड स्मॉल कंपनी, और एक ऐसी प्राइवेट कंपनी दैट इज नीदर द होल्डिंग नॉर द सब्सिडरी ऑफ एनी पब्लिक कंपनी, अ प्राइवेट कंपनी दैट इज नॉट अ सब्सिडरी और नॉर द होल्डिंग कंपनी ऑफ एनी पब्लिक कंपनी एंड हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस. देखो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दोनों जोड़ना है, नॉट मोर देन 1 करोड़. ठीक है, पेड अप शेयर देखो इसमें आपको लर्न करना है 1-1-10. तो देखो पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस में दोनों रिजर्व आएंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, मतलब सारे टाइप के रिजर्व, वेदर इट इज अ रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, सारे टाइप के रिजर्व आपको जोड़ने हैं. तो अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस इज not more than 1 crore means less than equals to 1 crore या फिर which does not have the total borrowings exceeding rupee 1 crore. तो उसका मतलब its borrowing is up to 1 crore from any bank or financial institution. This is important. We need to consider borrowings only from the bank or financial institution and this needs to be checked at any point of time during the financial year. तो मतलब देखो मैंने बोला paid up share capital plus reserve and surplus is less than equals to 1 crore. Borrowings from bank or financial institution is less than equals to 1 crore at any point of time during the financial year and which does not have a total revenue as disclosed in schedule 3 and including revenue from the discontinued operations. This is very important. We need to include the revenue of the discontinued operations exceeding rupee 10 crore during the financial year. तो देखो मैंने आपको सिंपल बताता हूँ किन किन के ऊपर CARO doesn't apply. It does not apply on a banking company, insurance company, section 8 company, one person company and a small company, and also a private company that is neither a holding company nor a subsidiary company of a public company and having paid up share capital plus reserve and surplus less than equals to 1 crore. Total borrowings from bank or financial institution at any point of time during the financial year less than equals to 1 crore and revenue as disclosed in the schedule 3 including from the discontinued operations is less than equals to 10 crore. तो 1-1-10 आपको ये माइंड में बैठा लेना है. पैरा नंबर 2 क्या बोलता है कि ऑडिटर शुड इंक्लूड इन हिज ऑडिट रिपोर्ट, है ना, मैटर्स स्पेसिफाइड इन पैरा 3 एंड पैरा 4. तो पैरा 3 और पैरा 4 वाले मैटर्स अपन को ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करने हैं. सो व्हाट इज इंक्लूडेड इन पैरा 3? पैरा 3 बताता है किन किन मैटर्स के ऊपर ऑडिटर नीड्स टू रिपोर्ट अपॉन एंड पैरा 4 क्या बोलता है अगर ऊपर वाले पैरा 3 में कोई भी क्वालिफिकेशन है वेयर इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट द आंसर टू एनी ऑफ द क्वेश्चंस रेफर टू इन पैरा 3 इज अनफेवरेबल और क्वालिफाइड, द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल स्टेट द बेसिस, मतलब रीजन, ठीक है, फॉर सच अनफेवरेबल और क्वालिफाइड आंसर वेयर द ऑडिटर इज अनेबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन ऑन एनी स्पेसिफाइड मैटर. हिज रिपोर्ट शैल इंडिकेट सच फैक्ट टुगेदर विद द रीजन एज टू व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव हिज ओपिनियन ऑन द सेम. तो अगर देखो उसे कुछ मिसस्टेटमेंट है, मतलब कुछ गलत है, तो उसमें रीजंस बताने हैं, रीजंस आपको बताने हैं, या फिर मैं किसी मैटर पे ओपिनियन नहीं दे पा रहा, देन ऑल्सो आई नीड टू स्टेट द रीजंस व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गिव माई ओपिनियन, ठीक है, ऑन दी matters that are listed in para number 3. तो अब अपन पढ़ते हैं para number 3. तो para number 1 is about applicability, para number 2 that you need to include the matters prescribed in para 3 and para 4, and para 4 you need to give reason for any of the disqualifications or qualified. If you qualify any of the points given in para 3 then you need to state the reason of the same in para number 4. So let us start with para number 3. अब अपन ने इसका क्या किया है, we have summarized it in such a way that you will be easy, it will be easy to remember for you. ठीक है, सबसे पहले आप बैलेंस शीट शेड्यूल 3 को याद करो. सबसे पहले क्या आता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. तो वी हैव टू रिपोर्ट ऑन द फिक्स्ड एसेट्स. देन द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज अ नॉन फाइनेंशियल एसेट, तो हमें उसके ऊपर रिपोर्टिंग करना पड़ता है, ठीक है. फिर लोन्स के ऊपर, तो देखो
FILLD मतलब फाइल्ड, है ना, बस इसमें ई की कमी है, तो वो अपन आप ये समझ लो ई की जगह एल आ गया। तो देखो फिक्स्ड एसेट्स इन्वेंट्री लोन अंडर सेक्शन 189, लोन अंडर सेक्शन 185 एंड 186, डी स्टैंड फॉर डिपॉजिट्स अंडर सेक्शन 73 टू 76, है ना। फिर आता है फाइल्ड, अपन ने इतना कवर किया। फाइल्ड इज फिक्स्ड एसेट्स इन्वेंट्री लोन 189, 185 to 186 and D stands for deposits. Then we do the CSR. CSR, what does the CSR stands for? It stands for cross records. S stands for statutory dues. R stands for repayment of the deposits, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ दी टर्म लोन, है ना, तो रीपेमेंट ऑफ द टर्म लोन। तो ये क्लॉज नंबर 8 तक हो गया अपना। इफ अब इसमें क्या है अपना प्रोसीड्स ऑफ द IPO एंड FPO एंड F स्टैंड फॉर फ्रॉड। तो देखो सबसे पहले अपन ने पढ़ा फाइल्ड CSR इफ, अब अपन को लर्न करना है MNR एंड PNR, दिस MNR एंड PNR। तो MNR मीन्स मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, N मीन्स निधि कंपनी, R स्टैंड फॉर रिलेटेड पार्टी, P स्टैंड फॉर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एंड N स्टैंड फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शन एंड R स्टैंड फॉर RBI डायरेक्टिव्स अंडर सेक्शन 45 IA, मतलब रजिस्ट्रेशन एज एन NBFC। तो देखो मैं आपको लर्न कराता हूँ फाइल्ड CSR if MNR and PNR। तो फाइल्ड फिक्स्ड एसेट्स इन्वेंट्री, L स्टैंड फॉर लोन 189, 185, 186, D स्टैंड फॉर डिपॉजिट्स, C स्टैंड फॉर क्रॉस रिकॉर्ड्स, S स्टैंड फॉर स्टैट्यूटरी ड्यूज, R स्टैंड फॉर रिलेटेड पार्टी। इफ का कैसे बनाया था अपन ने IPO एंड FPO का यूटिलाइजेशन, एंड F stands for fraud if any done by the company or on the company by the officers or employees, ठीक है। MNR managerial remuneration, निधि company, related party, preferential allotment and N non-cash transactions and R stands for RBI directives under section 45 IA। अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन को ये समझना है क्या फिक्स्ड एसेट्स की whether the proper record is maintained showing the particulars including quantitative details and situation, मतलब वो कहाँ पे है, वो लोकेटेड कहाँ पे है फिक्स्ड एसेट, सिचुएशन, क्वांटिटेटिव डिटेल मतलब कितने क्वांटिटी में है, एंड शोइंग द फुल पर्टिकुलर्स, व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम। तो देखो पर्टिकुलर्स, क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड सिचुएशन, तो क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन है। अगर फिर दूसरा पॉइंट है क्या वो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ था एट रीजनेबल इंटरवल, अगर फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ था एट रीजनेबल इंटरवल तो क्या कोई डिस्क्रिपेंसी मिली, और अगर कोई मिली डिस्क्रिपेंसी वेदर द सेम हैज बीन प्रॉपर्ली डेल्ट विथ। तो ये वाला सेम टू सेम पॉइंट आपको इन्वेंट्री में भी मिलेगा। तो क्या फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ इन्वेंट्री का एट रीजनेबल इंटरवल, क्या कोई मटीरियल डिस्क्रिपेंसी मिली एंड वेदर द सेम हैव बीन प्रॉपर्ली डेल्ट विथ। तो फिक्स्ड एसेट्स का 1B इज इक्विवेलेंट टू पॉइंट नंबर 2 रिलेटेड टू इन्वेंट्री। तो फिक्स्ड एसेट्स इन्वेंट्री में देखो फिक्स्ड एसेट्स में क्या था, क्या प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड है जिसमें पर्टिकुलर्स पता चल रही है, क्वांटिटेटिव डिटेल पता चल रही है एंड सिचुएशन, कोई क्या फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ एट रीजनेबल इंटरवल्स, कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिली थी, अगर मिली थी तो वेदर द सेम हैव बीन प्रॉपर्ली डेल्ट विद, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है वेदर द टाइटल डीड्स ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टीज मींस लैंड और बिल्डिंग, ठीक है, आर हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। तो क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी टाइटल डीड्स आर हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी इफ नॉट प्रोवाइडेड डिटेल्स, है ना, तो आपको डिटेल्स देनी है। तो ये फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेंटरी के पॉइंट आपको लर्न हो जाने चाहिए, ठीक है। फिर अपन आते हैं लोन्स के ऊपर, वेदर द कंपनी हैज ग्रांटेड एनी लोन्स, ठीक है, टू companies, firms, LLP और other parties covered in the registered maintained under section 189। तो क्या हमने लोन दिया है टू द पार्टीज अंडर सेक्शन 189? हाँ, अगर दिया है तो क्या उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है दैट आर नॉट प्रीजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट, तो क्या उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है दैट शुड नॉट बी प्रीजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट। क्या स्केड्यूल ऑफ रीपेमेंट, कैसे वो पैसा हमें वापस रीपे होगा, दैट हैज बीन स्टिपुलेटेड एंड वेदर द रीपेमेंट आर रेगुलर और नॉट, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन जिसके ऊपर मैंने लोन्स दिया है टू द पार्टीज अंडर सेक्शन 189 वेदर दीज आर नॉट प्रीजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट, एंड क्या स्केड्यूल ऑफ रीपेमेंट हैज बीन स्पेसिफाइड एंड वेदर द रीपेमेंट्स आर रेगुलर और नॉट, ठीक है। अगर देखो अगर रीपेमेंट रेगुलर नहीं है तो अमाउंट क्या हो जाएगा, ओवरड्यू हो जाएगा। इफ द अमाउंट इज ओवरड्यू द स्टेट द टोटल अमाउंट ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 days, यू नीड टू रिपोर्ट हियर ओनली इफ द अमाउंट इज ड्यू फॉर मोर देन 90 days
एंड वेदर द रीजनेबल स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द कंपनी फॉर द रिकवरी ऑफ द प्रिंसिपल एज वेल एज द इंटरेस्ट। तो क्या प्रॉपर स्टेप्स लिए हैं या नहीं लिए हैं, ठीक है। एंड फिर अपन ने मतलब 3 पॉइंट्स है 189 लोन टू 189 पार्टीज, तो हमें देखना है टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट प्रीजुडिशियल, क्या रीपेमेंट शेड्यूल स्टिपुलेटेड है, अगर है तो क्या उसके हिसाब से पेमेंट्स आ रही है या नहीं आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो दैट मीन्स इट इज ओवरड्यू, लेकिन वी हैव टू रिपोर्ट ओनली दोज ओवरड्यू अमाउंट दैट हैव बीन आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 90 days and we have to state whether reasonable steps have been taken by the company to recover the principal as well as the interest। ये हो गया 189, ठीक है। अब अपन को देखना है कि जब मैंने लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी एंड सिक्योरिटी दी, ठीक है, whether the provision of section 185 and 186 have been complied with, if not then provide the details। आप तो क्या आपने 185 एंड 186 की कंडीशंस को कंप्लाई विद किया या नहीं किया। 185 क्या बोलता है, लोन्स कैन नॉट बी गिवन टू द डायरेक्टर विद सर्टन एक्सेप्शंस, वो आपको पता ही होगा। अगर मान लो कि एम्प्लॉइज के टर्म्स में दे रहे हैं हम उसे, जो कि सबको दे रहे हैं, तो उस टाइप का अलाउड होता है। तो 185 186 60% और 100% वाली लिमिट आपको माइंड में बैठनी चाहिए, 185 186, है ना। अब अपन चलते हैं डिपॉजिट्स के ऊपर। फाइल्ड फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, लोन्स एंड डी स्टैंड्स फॉर डिपॉजिट्स, है ना। तो क्या कंपनी ने एक्सेप्ट किए डिपॉजिट्स, तो अगर किए है तो क्या उसने डायरेक्शन ऑफ द आरबीआई है उसे कंप्लाई विद किया है, और सेक्शन 73 to 76 को भी उसने कंप्लाई विद किया है, और उसके अंडर जो रूल्स बने हैं तो 73 76 एंड रूल्स देयर अंडर एंड आरबीआई के डायरेक्टिव्स को अगर नहीं कंप्लाई किया है ना, वे हैव बीन कंप्लाइड विद। इफ नॉट द नेचर ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशंस बी स्टेटेड, हमें ये बताना पड़ेगा विच सेक्शन वी हैव नॉट कंप्लाइड विद। तो सेक्शन 73 to 76 read with rules along with the RBI directives, ठीक है। If an order has been passed by the CLB or the NCLT or the RBI or any court or tribunal, whether the same has been complied with or not, ठीक है ना। अब अपन को देखो, अगर 73 to 76 या फिर RBI या गाइडलाइंस का कंप्लाई नहीं करेंगे, तो अगर 73 to 76 का नॉन कंप्लायंस हुआ तो या तो कंपनी लॉ बोर्ड और NCLT इनमें से कोई बंदा ऑर्डर दे सकता है, ठीक है, या फिर RBI कुछ ऑर्डर दे सकता है कि भाई अब आप इसे कंप्लाई करो, ठीक है। तो क्या आपने उस ऑर्डर का कंप्लायंस किया या नहीं किया, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को समझना है आरबीआई के डायरेक्टिव्स 73 to 76 एंड रूल्स, क्या हमने इसका कंप्लायंस किया। अगर नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है कंपनीज एक्ट के केस में सीएलबी या फिर एनसीएलटी या फिर आरबीआई के केस में आरबीआई खुद हमें क्या बता सकता है, एक ऑर्डर पास करके बता सकता है कि आपको ऐसे कंप्लाई करना है। तो हमें देखना है कि क्या वो ऑर्डर भी हमने कंप्लाई किया है या नहीं किया है। तो फाइल्ड अपना कवर हो जाता है। फिर अपन आते हैं CSR, ठीक है। तो whether the maintenance of the cost records has been specified by the CG under subsection 1 of the section 148 and whether such accounts and record have been so made and maintained, क्या आपने cost records को बनाया है as well as maintain कर रहे हो आप, तो आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। फिर अब अपन आते हैं क्लॉज नंबर 7 that is about the statutory due। तो अब अपन को बताना सबसे पहले whether the company is regular in deposit undisputed statutory dues। तो क्या कंपनी रेगुलर है, सबसे पहले हमसे पूछा गया whether the company is regular। तो अगर इसका जवाब आता है हाँ, अगर इट इज रेगुलर तब तो कोई रिपोर्टिंग नहीं होनी है इस क्लॉज में, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं बोल देता हूं दैट इट इज नॉट रेगुलर, ठीक है, तो इट इज नॉट रेगुलर इन डिपॉजिटिंग द अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, तो आपको क्या करना है, आपको बताना है द एक्सटेंट ऑफ द एरियाज ऑफ द आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब देखो, अगर वो लास्ट डे कोई फाइनेंशियल ईयर पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट है दैट इज फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ, तो आपको वो बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, वेदर द कंपनी इज रेगुलर इन रीपेमेंट, वेदर द कंपनी इज रेगुलर इन पेमेंट ऑफ इट्स अनडिस्प्यूटेड, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। तो यहाँ पे क्या कंपनी रेगुलर है इन डिपॉजिटिंग इट्स अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। अगर जवाब आता है यस तो फिर वहीं पे क्वेश्चन खत्म, ठीक है। लेकिन अगर जवाब आता नहीं तो हमें फिनेंशियल ईयर के एंड के डेट पे हमें देखना कौन सा ऐसा अमाउंट है दैट वाज आउटस्टैंडिंग फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ एंड वी नीड टू रिपोर्ट अंडर पैरा 7 क्लॉज ए, ठीक है। आपको ये माइंड में बैठना है, ठीक है। अब ये जो बात हुई दैट इज अबाउट अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। अगर मान लो मेरा कोई डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, तो वेयर द ड्यूज ऑफ द इनकम टैक्स वेयर वेरियस स्टैट्यूटरी ड्यूज हैव नॉट बीन डिपॉजिटेड ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिस्प्यूट देन द अमाउंट्स इन्वॉल्व एंड द फॉरम वेयर द डिस्प्यूट इज पेंडिंग, कितना अमाउंट है और कहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है शैल बी मेंशन्ड। तो मुझे एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा जहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कितना अमाउंट है और कहाँ पे मेरा डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है ना।
अ mere representation to the department shall not be treated as a dispute. तो देखो अगर आपका डिस्प्यूट चल रहा है तो यू शुड फाइल एन अपील. आपने सिर्फ डिपार्टमेंट को बोला देखो ये तो करेक्ट नहीं है, तो आपने कोई अपील वगैरह तो फाइल नहीं करी. तो अ mere representation टू द डिपार्टमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ डिस्प्यूट. ठीक है, तो उसे हम डिस्प्यूट नहीं मानेंगे. आपने सिर्फ रिप्रेजेंट किया, दैट इज नॉट अ डिस्प्यूट, बट रादर यू शुड फाइल एन अपील, तभी हम मानेंगे दैट इट इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ द डिस्प्यूट. तो फाइल CSR. अब अपन चलते हैं रीपेमेंट. ठीक है, रीपेमेंट किसका? लोन्स और बोरिंग का. ठीक है, तो हमें रीपेमेंट किसे करना है? टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, गवर्नमेंट और ड्यूज टू द डिबेंचर होल्डर्स. कौन कौन है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, गवर्नमेंट and dues to the debenture holders. So whether the company has defaulted in the repayment of loans or borrowing to a financial institution. हमने loans और borrowing किससे लिए थे? financial institution, बैंक, गवर्नमेंट या फिर debenture holder से. तो अगर जवाब आता है हाँ कि आप there is a default, then the period for which the default pertains and the amount of default to be reported in case of defaults to the bank, financial institution and the government. Lender wise details to be provided. मतलब आपको हर एक बैंक का डिफॉल्ट बताना पड़ेगा. ठीक है, आप टोटल नहीं बता सकते. देखो आपने अगर किसी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिबेंचर होल्डर या गवर्नमेंट से लोन लिया एंड यू आर नॉट एबल टू रीपे इट, देन यू शुड प्रोवाइड द पीरियड फॉर विच यू हैव नॉट रीपेड एंड द अमाउंट. ठीक है, एंड इन केस ऑफ गवर्नमेंट, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यू शुड प्रोवाइड द लेंडर वाइज डिटेल. मतलब अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अलग लोन है तो यू शुड रिपोर्ट इट सेपरेटली. लेकिन अब देखो डिबेंचर होल्डर में ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि देयर में बी मैनी डिबेंचर होल्डर, तो वहाँ पे जरूरी नहीं है दैट यू प्रोवाइड द लेंडर वाइज डिटेल. ठीक है, क्योंकि डिबेंचर बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए ये पॉइंट डिबेंचर होल्डर्स के लिए नहीं आया. अब अपन को आता रीपेमेंट ऑफ ड्यूज. अब अपन चलते हैं इफ क्या है? IPO, FPO. तो वेदर मनी रेज्ड बाय द IPO और FPO including debt instrument, this is very important. IPO और FPO, इक्विटी नहीं, डेट वाला भी इंक्लूडेड है. एंड टर्म लोन्स, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? IPO, FPO, टर्म लोन्स. IPO, FPO में डेट वाला भी आएगा. ठीक है, वर अप्लाइड फॉर द पर्पज फॉर विच दे वर रेज्ड. तो क्या उसी पर्पज के लिए लगाया गया है, फॉर विच दे वर रेज्ड. इफ नॉट, द डिटेल्स ऑफ टुगेदर विद द डिलेज और डिफॉल्ट एंड सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन एज मे बी एप्लीकेबल बी रिपोर्टेड. तो अगर मैं बोलूँ IPO, FPO इंक्लूडिंग ऑफ इक्विटी एज वेल एज डेट इंस्ट्रूमेंट प्लस टर्म लोन, क्या उसी पर्पज के लिए लगाया गया जिसके लिए वो पैसा रेज हुआ था? अगर नहीं लगाया गया तो क्या डिले था एंड सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन क्या हुआ? ठीक है, अब अपन आते हैं क्लॉज नंबर 10 के ऊपर. क्या कोई फ्रॉड बाय द कंपनी, मतलब कंपनी फ्रॉड कर रही है या फ्रॉड ऑन द कंपनी, किसके द्वारा? बाय इट्स ऑफिसर और एम्प्लॉइज. तो अगर कंपनी के ऊपर फ्रॉड हो रहा है बाय इट्स वेंडर्स, मतलब कोई सप्लायर फ्रॉड करता है ऑन द कंपनी, देन इट इज नॉट कवर्ड. क्या कवर्ड है? कंपनी के ऊपर फ्रॉड हो रहा है, दैट इज डन बाय द ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज, देन ओनली इट इज कवर्ड इन क्लॉज नंबर 10. तो अगर कोई और बंदा फ्रॉड कर रहा है ऑन द कंपनी तो इट विल नॉट बी रिपोर्टेड इन क्लॉज नंबर 10. तो व्हाट नीड्स टू बी रिपोर्टेड? इफ अ फ्रॉड हैज बीन कमिटेड बाय द कंपनी और ऑन द कंपनी बाय इट्स ऑफिसर और एम्प्लॉइज. ठीक है ना? तो इफ यस, द नेचर एंड अमाउंट इन्वॉल्व इज टू बी इंडिकेटेड. तो फ्रॉड कौन सा? जो कंपनी ने किया है या कंपनी के ऊपर हुआ है बाय इट्स ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज, दैट ओनली नीड्स टू बी रिपोर्टेड हियर. ठीक है, अब अपन चलते हैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन. ठीक है, अब अपन चलते हैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन. वेदर द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन हैज बीन पेड और प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्विजिट अप्रूवल्स एज मेंटेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 197 रेड विद शेड्यूल 5. ठीक है, तो क्या मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इज इन अकॉर्डेंस विद 197 रेड विद शेड्यूल 5? इफ नॉट, स्टेट द अमाउंट इन्वॉल्व एंड द स्टेप्स टेकन बाय द कंपनी फॉर सेक्यूरिंग रिफंड ऑफ द सेम. तो देखो 197 एंड शेड्यूल 5 का कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो कितना अमाउंट है, और अगर आपने मान लो 197 से ज़्यादा रेम्यूनरेशन पे कर दी तो अब आपका कंपनी का राइट होता है टू गेट बैक इट फ्रॉम दी MD और उन सबसे आप रिफंड ले सकते हो. तो स्टेप्स टेकन बाय द कंपनी फॉर सिक्योरिंग रिफंड ऑफ द सेम. तो अगर आपने एक्सेस में रेम्यूनरेशन पे कर दी, देन वेदर यू आर टेकिंग स्टेप्स फॉर सिक्योरिंग द सेम फ्रॉम दी MD या फिर अदर डायरेक्टर्स. ठीक है, ये अपना पॉइंट हो जाता है. फिर अपन ने पढ़ा था MNR एंड PNR. ठीक है, तो अब निधि कंपनी के लिए, वेदर द निधि कंपनी हैज कंप्लाइड विद the net own funds to deposit ratio in the ratio of 1:20 to meet out the liability and whether the निधि company is maintaining, देखो उसे
उसे 1:20 का रेशियो मेंटेन करना है फॉर द नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट रेशियो, और उसे मेंटेन करना है 10% ऑफ द अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स, ठीक है। तो उसने क्या मेंटेन किया है, 10% ऑफ द अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स एज स्पेसिफाइड इन निधि रूल्स टू मीट आउट द लायबिलिटी। तो उसे ये 10% ऑफ द अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स में रखना है पैसा, ठीक है। तो 1:20 का रेशियो मेंटेन करना है नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट्स, एंड Nidhi company is maintaining 10% unencumbered term deposits as specified in the Nidhi rules. तो डिपॉजिट्स का 10% उसे टर्म डिपॉजिट्स में रखना है एज स्पेसिफाइड इन द निधि रूल्स। तो क्या वो उसका कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। MNR, आर से क्या होता है, रिलेटेड पार्टी, वेदर ऑल द ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टी आर इन कंप्लायंस विद सेक्शन 177 जहाँ पे ऑडिट कमेटी का अप्रूवल होता है, एंड सेक्शन 188 जहाँ पे रिलेटेड पार्टी है, इट्स सेपरेट सेक्शन है, ठीक है। वेयर एप्लीकेबल एंड द डिटेल्स हैव बीन डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो क्या क्या बोलना है, क्या कंप्लायंस हुआ है सेक्शन 177 का, 188 का, और क्या डिस्क्लोजर दिया गया है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर जाता है whether the and the details have been disclosed in the financial statement as required by the applicable accounting standard। तो मतलब तीन चीजें, क्या कंप्लायंस ऑफ 177 188 हुआ है या नहीं हुआ है, एंड whether the disclosure required by the अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैव बीन गिवन या नहीं दिया गया, ठीक है। अब अपन ने पढ़ा था PNR, ठीक है, तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। तो वेदर द कंपनी हैज मेड एनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स और फुली और पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ठीक है। तो दोनों कवर है, शेयर्स भी कवर है, डिबेंचर्स भी कवर है ड्यूरिंग द ईयर अंडर रिव्यू, एंड इफ सो वेदर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 42 हैव बीन कंप्लाइड विथ। तो देखो प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बेसिस पे आपने शेयर या डिबेंचर इशू किए हैं, तो क्या सेक्शन 42 की जो रिक्वायरमेंट्स है दैट हैव बीन कंप्लाइड विद, एंड द अमाउंट्स रेज हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पस। अब देखो अभी अपन ने IPO FPO टर्म लोन्स का पढ़ा था, ठीक है, IPO FPO का क्लॉज नंबर 9 के अंदर, और यहाँ पे सेपरेटली है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का जो पैसा रेज हुआ था दैट हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच द फंड्स वर रेज्ड, एंड द अमाउंट रेज्ड हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच द फंड्स वर रेज्ड। इफ नॉट प्रोवाइड द डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व्ड एंड द नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस। तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में क्या सेक्शन 42 का कंप्लायंस हुआ, दैट्स वेल एंड गुड, एंड वी नीड टू फर्दर स्टेट वेदर द सेम हैव बीन यूटिलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस जो कि उस समय इशू हुआ होगा, तो क्या द सेम हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच द मनी वाज रेज्ड। तो क्या अब फिर अपना आता है PNR, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। तो कंपनी ने क्या नॉन कैश ट्रांजैक्शन किया है विद द डायरेक्टर्स और पर्सन कनेक्टेड विद हिम, एंड इफ सो वेदर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 192 ऑफ द कंपनी दैट हैव बीन कंप्लाइड विद और नॉट, ठीक है। और whether the company is required to be registered under section हमें सबसे पहले क्लॉज नंबर 16 में ये बताना है whether the company is required to be registered under section 45IA, and if so whether the registration has been obtained। तो अगर वो NBFC का क्राइटेरिया फॉल करती है, 50% of its assets are financial asset and 50% of its income is from the financial asset, then it is required to be registered under section 45IA, and if it is required we need to state whether the registration has been obtained or not। तो ये अपना CARO 16 कवर हो जाता है, फाइल, CSR, IF, MNR एंड PNR, बस इतना लर्न करना है आपको। देखो फाइल्ड है ना, बस इसमें एक E का मिसिंग पॉइंट है, CSR, IF, MNR एंड PNR, दैट्स ऑल ऑफ द CARO 2016। होप you have liked the video. Please do subscribe to my channel. Thanks a lot.